Class, today we are going to start with new topic and that topic is free fall. So write down the topic name, free fall. Now what do you mean by free fall? Let me give you one example for free fall. Suppose if this is a pen, okay, और मैं इस पेन को छोड़ देता हूँ like this. So this is the free fall. Means what? A body is falling towards the earth from a very small height from the earth due to the influence of gravity. कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ जा रहा है, ओके, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल हाइट, मतलब अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी, ओके, और वो क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल. ओके, पहले फ्री फॉल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम फ्री फॉल का एक एग्जांपल और लेंगे. ठीक है. सो अ बॉडी which is falling towards the earth from a very small height due to the influence of gravity is called free fall. So this is the definition for the free fall. A body which is falling towards the earth from a very small height due to the influence of gravity is called free fall. ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ जा रहा है तो उसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर द फ्री फॉल. For example, this is the surface of earth and there is a tree over here. This is an apple tree. For example, there is an apple over here. Okay, और ये एप्पल इस ट्री से टूट के, यहाँ पर इस ट्री पे बहुत सारे एप्पल है. फॉर एग्जाम्पल, ये एप्पल ट्री से टूट के जैसे ही टूट गया, as you can see it is moving towards the earth. okay, ये एप्पल की जो मोशन है वो कहां पर है, towards the earth. why this motion is towards the earth? because जो gravitational force क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है. so this is the motion because of the gravity. Gravitational force के अलावा उस पर और कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे. ओके, So such type of motion is known as what? The free fall. ऐसी motion को हम क्या बोलेंगे? Free fall. Okay. And the body which is moving towards the earth with an acceleration, that acceleration is nothing but acceleration due to gravity. उसी acceleration को क्या बोलेंगे हम? Acceleration due to gravity. So we will write down over here a body which is falling towards the earth with some acceleration and that acceleration is called as acceleration due to gravity. ठीक है. सो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू चेंज होती है एज यू गो एट अ हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. g की वैल्यू चेंज होगी. जब हम अर्थ के नीचे जाएगा एट अ सर्टेन डेप्थ, तभी g की वैल्यू चेंज होगी. अर्थ के डिफरेंट पोजीशंस पे g की वैल्यू कुछ और होती है. ओके, बट फिलहाल इस चैप्टर के लिए हम g की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलेंगे, दैट इज 9.8. कुछ टेक्स्ट बुक में g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते टू मेक द कैलकुलेशंस इजी. ओके, तो डिपेंड करता है g की वैल्यू क्या मेंशन की हुई है. ओके, लेट्स चेक इट आउट कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया, इस चीज को समझते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द राइट नाउ एप्पल इज एट दिस पोजिशन, अभी भी वो ट्री पे है. सो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड. अब जैसे ही एप्पल ट्री से निकल गया, टूट गया मतलब, ओके, सो व्हाट हैपेंड,
यहाँ पर आफ्टर 1 second at t is equals to 1 second you will find out the velocity of apple is 9.8 meter per second. What is the change in velocity? 9.8 in 1 second means this is the acceleration due to gravity. After 2 seconds you will find out, after 2 seconds the velocity is 19.6 meter per second. After 3 seconds you will find out it is 29.4 meter per second, and so on. As you will see, in every 1 second of an interval velocity is changing by 9.8 meter per second. So that's why we got the acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. Okay, so it means what? A body is falling under the influence of gravity. It is moving with uniform acceleration. Acceleration is uniform. Acceleration is not changing. Acceleration is uniform. Clear? So we know that for uniform acceleration we have the 3 kinematical equations. तो इन मोशंस को, फ्री फॉल वाली मोशंस को हम पढ़ने के लिए हम 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस की मदद लेंगे. व्हाट इज 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन? लेट्स गो विद दैट. द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. So these are the 3 kinematical equations we have. Correct? Now when we are learning free fall or you can say motion under gravity, तब ये kinematical equations थोड़ी सी change हो जाएगी. Okay? Let's see क्या changes आ जाते हैं इसमें. If you will see this kinematical equation, सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें a को replace करना है g से. So therefore our kinematical equation becomes v is equals to u plus gt. Second kinematical equation s is equals to ut plus half gt square. The third kinematical equation v square is equals to u square plus 2gs. Okay, so these are the 3 kinematical equations we have. Clear? Okay, let's move ahead now. Let's derive something. Okay, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हम डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर. फाइन. बिफोर डिराइविंग एनीथिंग वी नीड टू नो व्हाट इज साइन कन्वेंशंस. ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है साइन कन्वेंशंस पे, तो हम साइन कन्वेंशंस को पहले देख लेते हैं और ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं. ठीक है, सो वी विल सी द साइन कन्वेंशंस. बट रिमेंबर वन थिंग, हम साइन कन्वेंशंस किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं. इफ यू विल सी वी हैव द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as. So साइन कन्वेंशंस हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के लिए पढ़ रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर वेक्टर कौन है? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. सो मतलब हम साइन कन्वेंशन से इस 4 क्वांटिटीज के लिए देखेंगे. क्लियर? फाइन. इफ सपोज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर इफ सपोज दिस इज अ बॉल, इट इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इफ अ बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज केस 1. यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं, दिस इज, एंड दिस इज केस 2. ठीक है, केस 2 में बताऊंगा, पहले केस 1 की स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, इफ अ बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, so suppose right now the ball is at position A, after some time it attains the position B. ठीक है, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, तो ये इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव में होगा अगर वो ऊपर की डायरेक्शन में है. ठीक है, एज यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A to B, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, फाइन. अभी हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स, अगर ये बॉल इस पॉइंट के बाद ऊपर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव. मतलब वेलोसिटी अगर जब भी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन. हमें पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g. a का वैल्यू क्या होगा? g के बराबर होगा अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूँ तो. ठीक है, but if you will see
द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा. क्लियर. सो द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सी जी का वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ होगा. सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव. यहां पर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ जी इज नेगेटिव. मीन्स व्हाट? हम साइन कन्वेंशन को एक सिंपल रूल बना देते. The direction of physical quantity in the upward direction is taken as positive and the direction of physical quantity in the downward direction is taken as negative. Okay? कोई भी physical quantity जिसकी direction ऊपर की तरफ है तो हम उसको positive ले लेंगे. कोई भी physical quantity जिसकी direction नीचे की तरफ है तो उसको हम negative ले लेंगे. तो second case भी हम लोग देख लेते हैं. For example, right now the ball is at this position. At position A, it is thrown in the downward direction with velocity u. Okay? After some time it reached the position B. It attains a certain position that is B. Okay. U देखो अभी कौन सी डायरेक्शन में? In the downward direction. तो U को जो है हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे. क्लियर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा वो उस पे नीचे की तरफ ही लगेगा. सो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. माइनस जी यू कैन से. ओके फाइन. तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया हमारा. क्लियर. अभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर. सो मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. ओके फाइन. साइन कन्वेंशंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विदाउट साइन कन्वेंशंस आल्सो. मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा. साइन कन्वेंशंस के साथ भी बता दूंगा, साइन कन्वेंशंस के बिगर भी बता दूंगा. ठीक है फाइन. तो यहां तक हमने स्टडी कर लिया है. ओके अभी हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उनको डिराइव करेंगे. ओके और फिर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ. ओके सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ एसेंट. व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? सो राइट डाउन टाइम ऑफ एसेंट. देयर इज अ टू डेफिनेशन. वन इज टाइम ऑफ एसेंट एंड अनदर इज अ टाइम ऑफ डिसेंट. सो टाइम ऑफ एसेंट, एज वी नो दैट व्हाट यू मीन बाय एसेंट? एसेंट इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. नीचे से ऊपर जाना. नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है दैट इज नथिंग बट व्हाट अ टाइम ऑफ एसेंट. फॉर एग्जांपल इफ सपोज दिस इज अ बॉल थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये जो बॉल की मोशन होगी ये कैसे होगी? इट विल मूव इन दिस वे. ऐसे ऊपर जाएगा, बाद में ऐसे नीचे गिर जाएगा. सो जब बॉल की जो मोशन है ए से बी तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट. लेकिन वही बी से सी तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट. Okay, so the time taken by the body to attain a maximum height is called time of ascent. Clear? So time of ascent, the time taken by the body to attain a maximum height is called time of ascent. Or you can define in this way also, the time taken by the body to reach from bottom to the topmost position is called time of ascent. Let's see the time of descent. Time of descent. A time taken by the body, the time taken by body to reach from topmost point to bottom point. To reach from topmost point to bottom point is called time of descent. इसी को हम बोलेंगे time of descent. ठीक है. Remember one thing class, the node point is time of ascent is always be equals to time of descent. टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन मोर डेफिनेशन वी विल सी, टाइम ऑफ फ्लाइट.
which is represented with capital T. What is time of flight? The time taken by the body to complete its entire journey. पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब ए से बी और बी से सी तक आने में उस बॉडी को जो भी टाइम लगा है उसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सो विल राइट डाउन द डेफिनेशन. द टाइम टेकन बाय बॉडी, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट its entire journey, to complete its entire journey is called time of flight. बॉडी को जो टाइम लग गया अपनी पूरी जर्नी खत्म करने के लिए उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, कैन वी से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. यस, है ना. फॉर एग्जाम्पल बॉडी को ए से बी तक आने में 2 सेकंड का टाइम लग गया, बी से सी तक आने में 2 सेकंड का टाइम लग गया. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? 4 सेकंड. 2 + 2. Clear? We know that time of descent is nothing but time of ascent. So I will write down that time of ascent plus time of ascent. So therefore time of flight is 2 times of time of ascent. So that is the formula for the time of flight. Clear? In the form of time of ascent. हम time of ascent का भी एक formula देखेंगे. Okay? So let's see the formula for the time of ascent. For example, this is a body. We'll take this as an example. If a body is thrown with a velocity u. Okay, if a body is thrown with a velocity u, so what will be the time of ascent? Time of ascent means the body has covered a distance of a to b. मतलब a से b तक आया, b पे उसने क्या किया? वापस से अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके c पे आ रहा है. So at the point of b, the velocity is what? 0 meter per second. The final velocity. So we have the value of final velocity, that is v is equals to 0 meter per second, and initial velocity I will take in the negative sign because it is in the upward direction. Clear? Acceleration also we will take with the negative sign, that is minus g. Correct? So we will use the first kinematical equation. So according to first kinematical equation, what is your first kinematical equation? That v is equals to u plus at. Correct? V is equals to u plus at. Oh sorry, we will take u positive, not negative, because u is in the upward direction. Okay, so u will be positive, not negative. So the value of v is 0, the value of u is in positive, the value of a is minus g into t. T is what? Time of ascent. A से B तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ ascent बोलते हैं. So therefore I will write down that u is equals to g into ta. So therefore time of ascent comes out to be u by g. So that is the formula for the time of ascent. So if this is the time of ascent, what will be the time of flight? So therefore the time of flight t is equals to 2u by g. Putting the value of time of ascent in this equation, so we'll get the value of time of flight. Clear? So this is the all about what? Time of ascent, time of descent and time of flight. Now we will see maximum height attained by the body. What is the maximum height attained by the body? In this case, the maximum height attained by the body is from A to B. Let's see. Maximum height attained by a body. Maximum height attained by a body. Okay. So in this case, the maximum height attained by the body is this one, h. ठीक है? So we will say that displacement is h. It is in positive. The reason behind that, the displacement direction is in the upward direction. So s will be positive. ठीक है? Initial velocity is also positive. Acceleration is negative, that is minus g, because acceleration is always negative for any motion, चाहे a से b जाओ या b से c जाओ. Okay? Because acceleration की जो direction होती है, it is always acting in the downward direction. So a is equals to minus g always. So using the second kinematical equation, so s is equals to ut plus half at square. Here what is t? T is time of ascent. क्योंकि a से b तक पहुंचने के लिए
हमें ये टाइम ऑफ एसेंट लगेगा जो अभी हमने डिराइव किया है, दैट इज u by g. करेक्ट? फाइन. So putting all these values in this equation and we'll see what we are getting. So therefore s की जगह h लिख दिया मैंने. Okay, initial velocity कुछ था. So u, what is time of ascent? It is u by g. So into u by g plus half the value of a is minus g. Okay, and the value of t is u by g. So u by g the whole square. Correct? So therefore it becomes u square by g plus minus become minus half g into u square by g square. So this part get cancelled. So therefore I will write down u square by g minus half u square by g. So it comes out to be u square by 2g. So this is the maximum height attained by the body. It is u square by 2g. Clear? As you can see, the maximum height depends on the initial velocity. आपकी इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज आल्सो मोर. क्लियर? तो ऊपर फेंकने वाला वेलोसिटी अगर आपका ज्यादा होगा तो हाइट जो बॉडी अटेन करेगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस टॉपिक. नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके, हियर वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम. Okay, the question is the ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? How long will it before the ball hits the ground? Okay, chalo, let's frame a question over here. Is suppose this is your multi-storied building. Okay, and a boy, let's suppose the boy is on the terrace of the building. The building is at as of a height of 25 meter. बिल्डिंग का जो हाइट है वो 25 मीटर है. यहाँ से मालूम पड़ता है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर. हम ऐसा अज्यूम करेंगे दैट इज अ बॉय विच इज ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग विच इज एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, दिस बॉय इज थ्रोन अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 20 meter per second. तो यहाँ से जो बॉल था इसने ऊपर की तरफ फेंका in this direction. So ball will move in this way. बॉल ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा. So this is the position A, this is position B and this is position C. Okay, so this is the motion which is ball performing. Okay, so what we need to find out, okay, how high will the ball rise? What is the height of the ball from this position? So means we need to calculate this value, that is h. हमें ये value calculate करना है, the value of h. Clear? Fine. So I will show you some methods to solve this equation. See here. Let's solve with the method 1. Method 1 means using sign conventions. Method 1 using sign convention. As I told you, मैं आपको सारे methods बताऊंगा इस sum को solve करने के लिए. ठीक है? तो method 1 में हम sign conventions use करेंगे. तो sign conventions use करके सबसे पहले उसकी initial velocity upward direction में है. So upward direction के लिए initial velocity plus आएगा, plus 20 meter per second. Clear? Perfect. Afterwards the final velocity, it is 0 meter per second क्योंकि B position पे उसकी final velocity 0 हो जाएगी. Clear? Okay. The value of acceleration due to gravity in sign conventions, when you took the sign conventions, acceleration due to gravity is always negative. So A is equals to minus 10 meter per second square. So यहाँ पर A हमें कितना दिया हुआ है, minus 10 meter per second square. Okay. So this all are the values to solve this equation. So first we will solve V square is equals to U square plus 2AS using the third kinematical equation. The value of V is 0. So 0 square, the value of u is 20. So 20 square plus 2, the value of acceleration is minus 10 and the value of s is h. The displacement is h. So therefore I will write down h. So the 0 square will be 0, 20 square will be 400. 2 into minus 10 minus 20h. So therefore 20h comes out to be 400. So therefore h is equals to 400 upon 20. These get cancelled. 40 upon 2, that is what, 20 meter. So therefore the height attained by the ball, maximum height is 20 meter. This is the maximum height attained by the ball.
ओके, इतनी मैक्सिमम हाइट बॉल ने अटेन की है. नाउ दिस इज अ मेथड 1 टू सॉल्व दिस इक्वेशन. नाउ वी विल सी द मेथड 2 विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशन. मतलब यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, क्लियर. सो मीन्स व्हाट, अगर साइन कन्वेंशन नहीं लिया तो u का वैल्यू क्या होगा, u विल बी पॉजिटिव. साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, u पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. सो u इज इक्वल्स टू ऑलवेज पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन, सी व्हेन द बॉल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो बॉल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. एज वी नो दैट अगर बॉल की यहाँ पर कुछ स्पीड है और वो ए से बी जा रहा है, बी पे उसकी स्पीड 0 हो गई, तो ऑब्वियसली बॉल की स्पीड कम हो रही है. अच्छा, अगर बॉल की स्पीड कम हुई तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, दैट इज अ रिटार्डेशन. सो रिटार्डेशन कौन से टाइप की एक्सेलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन a इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो एज यू कैन सी, जब हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे तो ये डेटा सेम एज इट इज आ गया. क्लियर. ओके, so therefore when you solve this equation with the using the third kinematical equation, v square is equals to u square plus 2as, the value of v 0, the value of u 20 plus 2 acceleration minus 10 and displacement h. So it comes out to be 400. 2 into minus 10 minus 20h is equals to 0. So therefore 400 is equals to 20h. So therefore h is equals to 20 meter. So this is the height attained. Okay, next we'll move to the method 3. I'll write down over here only. Method 3 to solve this equation. Method 3 में तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बना के दिया है, वो फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा. That h is equals to u square by 2g. What is the value of u? u का वैल्यू 20 था, सो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 20 का स्क्वायर टू द वैल्यू ऑफ g इज 10, सो इट कम्स आउट टू बी 400 अपॉन 20, गेट कैंसिल 1 ज़ा 20 ज़ा, देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू 20 मीटर. सो 3 तरीके से हाइट कैलकुलेट हो सकती है. क्लियर. सो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन 3 टाइप से किया है, तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए. नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. हाउ लॉन्ग विल इट बी फोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. बॉल को ग्राउंड पे आने से पहले कितना टाइम उसने ट्रेवल किया, मतलब ए से बी एंड बी से सी. सी क्लास, यू कांट यूज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस. द रीजन बिहाइंड दैट, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, ये बॉल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक उसी लाइन पे आने पे उसे कितना टाइम लगा, तब हम टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर सकते हैं. बट ये बॉल यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉस होके नीचे गया है, सो यू कांट यूज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस सम. ओके, तो इस सम को कैसे करेगा, लेट्स सी. ओके, सो इफ यू विल सी, इनिशियली द बॉल इज एट पोजीशन ए, आफ्टर सम टाइम द बॉल इज एट पोजीशन सी. सो इफ आई टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द बॉल, सो व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 25 मीटर. Displacement is final position minus initial position. Final position is C, initial position is A. So what is the shortest distance? It is 25 meter. But 25 meter positive या negative? अगर मैं साइन कन्वेंशंस की बात करूँ तो अगर साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन s इज इक्वल्स टू -25 मीटर. क्लियर. फाइन. अभी हम ये वैल्यूज पुट करके सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम टाइम निकालेंगे. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s का वैल्यू कितना है, -25, u का वैल्यू कितना है 20, टाइम नहीं पता, हाफ a का वैल्यू कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर, 1 ज़ा 5 ज़ा. सो इट कम्स आउट टू बी -25 इज इक्वल्स टू 20t minus 5t square. So therefore 5t square minus 20t minus 25 equals to 0. Correct? So ये equation मिला. This is a quadratic equation. We know that. Okay? So हमें इस quadratic equation को solve करना है and we will see what will be the answer. So therefore I will write down, after solving 5t square minus 25t plus 5t minus 25 is equals to 0. Clear? Let's take 5t common over here. So inside the bracket t minus 5
प्लस 5 t minus 5 equals to 0. ठीक है, perfect. So now if you will solve this equation, so what you will get? And you solve this equation, so t minus 5 and 5t plus 5 equals to 0. So t minus 5 0 हो सकता है, जिसकी वजह से t 5 सेकेंड आएगा, या फिर 5t plus 5 0 होगा, जिसकी वजह से t माइनस 1 सेकेंड आएगा. एज वी नो दैट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है. क्लियर? तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग गया? 5 सेकेंड टू रीच द बॉडी फ्रॉम A to B एंड B to C. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग यूजिंग द मैथड 1. ओके, हम मैथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशंस. ओके, मैं आपको मैथड 2 भी बता देता हूँ विदाउट यूजिंग साइन कन्वेंशंस कैसे सॉल्व होता है. थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है विदाउट यूजिंग साइन कन्वेंशंस, बट आपकी कंफ्यूजन नहीं होता है तो आप सेकेंड मेथड से ही जाओ, क्योंकि बिकॉज एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राइट आंसर आना. क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू द सेकेंड मेथड विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशंस. हम कहीं साइन कन्वेंशंस की मदद नहीं लेंगे. फॉर मोशन ए बी, सबसे पहले मोशन ए बी को पढ़ लेते हैं. फॉर मोशन ए बी, किसकी बात कर रहे हैं? मोशन ए बी की बात कर रहे हैं. सो फॉर मोशन ए बी, ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये पता करेंगे, फिर बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये पता करेंगे. सो फॉर मोशन ए बी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बी पे? वी नो दैट द फाइनल वेलोसिटी एट द बी इज 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो देयर इज अ रिटार्डेशन इन द बॉडी. सो ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन है. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v इज इक्वल्स टू u plus at यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ v इज 0, द वैल्यू ऑफ u इज 20, द वैल्यू ऑफ a इज 10 -10 into t. So therefore I will write down 20 is equals to 10t. So t is equals to 2 second. So A से B तक जाने में 2 सेकेंड का टाइम लग गया. अब बात करेंगे B से C तक के मोशन की. So for motion BC, for motion BC, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0, क्योंकि B पे वेलोसिटी उसकी 0 थी. ठीक है, फाइन. यहाँ पर U का वैल्यू तो हमें मिल गया 0. उसके बाद हमें पता करना है टाइम. एक्सेलरेशन क्या होगा? एज बॉडी इज गोइंग डाउन, बॉडी नीचे आ रहा है. अगर बॉडी नीचे आ रहा है, ठीक है, इफ द बॉडी इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन विल बी इन द पॉजिटिव और नेगेटिव. एज वी नो दैट बॉडी अगर नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव में दिस टाइम. ठीक है, दिस टाइम इट विल बी इन पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, रिटार्ड नहीं हो रहा है. ठीक है, फाइन. ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पर बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया था? BC. हमें BC डिस्टेंस चाहिए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा, एच कितना आ रहा था हम लोग को? 20 मीटर. 20 + 25. B से C तक का डिस्टेंस कितना है? 20 + 25, दैट इज 45. सो आई राइट डाउन 45. ठीक है, using the second kinematical equation, that is s is equals to ut plus half at square. ठीक है, s की वैल्यू क्या है? 45. so I'll write down 45 over here, s की जगह 45. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी हमारी, तो u का वैल्यू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, u into t प्लस हाफ. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इट्स 10, द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर नहीं पता. ठीक है, so 1s are 5s are, so 45 is equals to 5t square. So 5 1s are 5 9s are, so therefore t square is equals to 9. So therefore t is equals to plus minus 3 second. As we know that time cannot be negative, so therefore t is equals to 3 second. So यहाँ से A से B तक आने में 2 second, B से C तक आने में 3 second. So the total time 2 + 3, that is 5 second. So we got this as a total time. Clear? Okay class, let's solve the next question. Next question is very interesting. The question is, a parachutist bail out
from an aeroplane, and after dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in air? At what height did he bail out from the aeroplane? Okay, let's see. If suppose this is an aeroplane, okay, a person bails out from the aeroplane, person कूद गया aeroplane से, okay, at a distance of 40 meter, at a distance of 40 meter, यहाँ पर बोला है थोड़ा डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट. अभी उसने पैराशूट ओपन कर दिया लाइक दिस, ठीक है. बट यहां से यहां तक जब वो बेल आउट हुआ एरोप्लेन से, मतलब जब वो कूद गया, तब वो कौन सी मोशन में था? इट इज अंडर फ्री फॉल. तब वहां पर उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट जैसे ही उसने पैराशूट ओपन किया, अब इन्होंने क्या बताया? दैट देयर इज एन डी एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन. कितनी रिटार्डेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब इसके बाद इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई. करेक्ट, फाइन. क्योंकि रिटार्डेशन है इसके लिए हम यहां पर माइनस साइन ले लेंगे. अगर एक्सेलरेशन होता तो हम प्लस साइन लेते. ठीक है. सो अच्छा, इस सम को मैं विदाउट साइन कन्वेंशंस कर रहा हूं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ओके, अच्छे से समझ सको. ओके, नाउ सी हियर, जब ये पैराशूट के साथ ग्राउंड पे आ गया, सो दैट टाइम उसकी स्पीड जो थी, द स्पीड ऑफ दैट पर्सन इज 2 मीटर पर सेकेंड. कितना है स्पीड उसका? 2 मीटर पर सेकेंड. सो क्वेश्चन इज, जब ही वो एरोप्लेन से कूदा और जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसे कितना टाइम लग गया? मीन्स व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पैराशूटिस्ट फ्रॉम बेल आउट to reach to the ground. Clear? Fine. Let's start solving this question. सबसे पहले हम पढ़ेंगे for motion A to B. For motion A to B. उसके बाद हम पढ़ेंगे for motion B to C. So let's talk about for motion A to B. For motion AB. अगर AB की बात करें तो initial velocity कितनी थी? 0. So initial velocity is 0 meter per second. Correct? Acceleration due to gravity कितनी है? 10. So acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Correct? Fine. So अभी यही वैल्यू से, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल भी हमारे पास है 40 मीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल इज 40 मीटर. सी क्लास, वी आर नॉट गोइंग दिस सम विद साइन कन्वेंशंस. डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नेगेटिव लेना चाहिए, बट मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि हम इस सम को साइन कन्वेंशंस की मेथड से नहीं कर रहे. ओके, फाइन. तो आप चाहे कोई भी मेथड लगा दो, एग्जाम्स में दोनों ही राइट होता है. ठीक है, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेथड. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नाउ वी विल यूज which equation? We will use the second kinematical equation, that is S is equals to ut plus half at square. We will use this equation. So what is the value of S? It is 40. The value of initial velocity is 0 into time plus half. The value of acceleration is 10 into t square. So 1 za 5 za. So therefore I will write down 40 is equals to 5t square. So therefore t square is equals to 40 by 5, that is 8. So therefore t is equals to 2 root 2 second. So उसे a से b तक आने में कितना टाइम लग गया? 2 root 2 सेकेंड का टाइम लग गया a से b तक आने में. फाइन. मैं चाहता हूँ कि हम इस मोशन में यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लें कि अभी उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो a से b आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस at. द वैल्यू ऑफ u इज 0, द वैल्यू ऑफ a इज 10. So we'll put the value of a is 10. टाइम कितना टाइम लग गया? 2 root 2. तो यहाँ पर टाइम भी लिख देंगे 2 root 2. So you will find out the velocity is 20 root 2 meter per second. So this is the velocity we have at this particular point. So we'll write down. So v is equals to 20 root 2 meter per second. Clear? Perfect. Okay, तो इतना हमें मिल गया. नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर मोशन BC. Let's talk about for motion BC now.
सो फॉर मोशन बी सी, ओके, फॉर मोशन बी सी, अभी मोशन बी सी में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20√2, सो आई विल राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी 20√2, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी इट्स 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सो एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परफेक्ट. So now we will calculate the time. So therefore V is equals to U plus AT. We will use the first kinematical equation. The value of V is 2. The value of U is 20√2. The value of A is -2. And the value of time is T. Correct? So 2 को cancel कर देंगे हर जगह से. So therefore 1 is equals to 10√2 minus T. So therefore T is equals to 10√2 minus 1. करेक्ट. सो यहां से B से C तक पहुंचने का जो टाइम लग गया वो कितना लग गया 10√2 minus 1. करेक्ट, परफेक्ट. लेट्स मूव अहेड नाउ. टाइम हमें इतना लग गया, सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल टाइम. सो द टोटल टाइम इज व्हाट 2√2 प्लस 10√2 minus 1. So therefore the total time comes out to be 12√2 minus 1 second. So this is your total time. ठीक है, तो इतना टोटल टाइम हमें लग गया. Now we need to find out at what height did he bail out from the plane. मतलब मुझे ये हाइट कैलकुलेट करनी है. What is the height of the plane from the ground? ओके, तो ऑब्वियसली 40 मीटर है. BC वाला अगर हमें हाइट मिल जाए तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइट BC. BC की हाइट की बात करेंगे. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन S is equals to UT plus half AT square to find out that time. Clear? We will put the value of time and all the variables in this equation. The value of time for motion B to C, it's 10√2 minus 1. So but 10√2 minus 1, it seems to be very complicated to calculate. So एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. That 10√2 minus 1 comes out to be 13.14 seconds. So I'll write down over here, it is 13.14 seconds. So putting all these values in this equation and we'll find out what is the displacement. So therefore S is equals to U value 20√2, the value of time 13.14 plus half, what is the acceleration, it is -2 into T square. What is the value of T? It's 13.14 square. So get cancelled. So solving this equation, let's see. So it comes out to be 20√2 into 13.14 minus 13.14 का square. So it comes out to be 198.99, that is 199. So I'll write down displacement is 199 meter. So S is equals to 199. So ये जो डिस्टेंस आया हमें 199 मीटर आया. So what is the total displacement? 40 plus 199. So 40 plus 199, it comes out to be 139 meter. So the total displacement is 139 meter. Oh, so the total displacement is 239 meter. Okay. Right class, let's solve the next question. Next question is two balls are thrown simultaneously. A vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the balls collide? Take G is equals to 10 meter per second square. For example, this is ball A. Okay. A vertically upward with a speed of 20 meter per second. So यहाँ पर speed कितना है 20 meter per second from the ground and B vertically downward from a height of 40 meter. This is B. It is thrown in the downward direction from a height of 40 meter from the ground with same speed. So the value of U is 20 meter per second. Clear? And along the same line of motion, at what point do the balls collide? For example, इनकी जो collision हुई है वो यहाँ पर हुई है at position C. Let's say this distance is x. If this distance is x,
then obviously this distance will be 40 minus x. Clear? 40 में से x हटा दो, so this distance will be 40 minus x. So let's learn about for motion BC first. So for motion BC, ठीक है, motion BC के बारे में पढ़ लेते हैं. Initial velocity कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. So I will write down u is equals to 20 meter per second. Distance traveled 40 minus x. So therefore s is equals to 40 minus x. ठीक है, फाइन. लेट्स सपोज b से c तक आने में टाइम लग गया t. ओके, फाइन. अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? एज बॉल इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेट होगा या डीएक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट होगा. तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, that is 10 meter per second square. Fine. So using the second kinematical equation, that s is equals to ut plus half at square. So the value of s is 40 minus x. U value is 20 into t plus half. A value 10 into t square. 1's are 5's are. So 20t plus 5t square. It's 40 minus x. So therefore x is equals to 40 minus 20t minus 5t square. So we got this as the equation. So I will say this is equation number 1. Let's talk about for motion AC now. For motion AC, A से C तक का motion. Okay, this is your A. Yeah. So initial velocity is 20 meter per second. When you throw body in the upward direction, the body will accelerate or decelerate? It will decelerate. तो बॉडी का डीएक्सेलरेशन होगा तो ए का वैल्यू हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बॉडी डीएक्सेलरेट हो गई, मतलब बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज एक्स, सो आई विल राइट डाउन एस इज इक्वल्स टू एक्स. सो यूजिंग सेकेंड काइनेमैटिकल इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. व्हाट इज टाइम? द टाइम टेकन विल बी सेम. जितना टाइम बी को सी तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम ए से सी तक पहुंचने में लगेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, एक साथ थ्रो किया है. ऑब्वियसली बी ने बी से सी तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा उतना ही डिस्टेंस ए से सी में आने में ट्रेवल हुआ होगा. ठीक है, फाइन. नाउ सी हियर एस का वैल्यू नहीं पता, मैं एस एक्स ले लो चलो. सो देयरफॉर आई राइट डाउन ओवर हियर एस की जगह मैंने एक्स ले लिया, यू की जगह मैंने 20 ले लिया. सो 20t प्लस हाफ. ए की जगह हम -10 ले लेंगे, सो -10 इंटू टी का स्क्वायर. ठीक है, टी का स्क्वायर. सो 1's are 5's are. So I will write down x is equals to 20t minus 5t square. So this is my equation number 2. So from equation 1 and 2, left hand sides are equal, means right hand sides are also equal. So therefore I will write down 40 minus 20t minus 5t square equals to 20t minus 5t square. So minus 5t square get cancelled. So 40 minus 20t is equals to 20t. So 40 is equals to 20t. वहाँ पर चले जाएगा. 20t plus 20t becomes 40t. Get cancelled 1. So therefore time becomes 1 second. टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड. सो इतना टाइम लग गया B को C तक आने में और A को C तक आने में. फाइन. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट अगेन, एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड. ठीक है, टाइम मिल गया हमें पता चाहिए, हमें पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सो फॉर द वैल्यू ऑफ x we'll put the value of time in any of the equation. I'll put in this equation, in equation 2. So therefore x is equals to 20 into the value of time is 1. So 20 into 1 minus 5 into 1 ka square. So it will be 20 minus 5, that is 15 meter. So the displacement is 15 meter. So the value of x comes out to be 15 meter. Clear? So 50 above point A, above 15 meter, both the balls will collide with each other. Okay, let's solve the next question. The next question is, a tennis ball is dropped on the floor from a height of 4 meter. It rebounds to a height of 3 meter. If the ball in contact with the floor is for 0.01 second, what was its average acceleration during the contact? Let's see. If suppose this is a ball,
इट इज़ मूविंग इन दिस वे, ऐसे थ्रो किया हमने, ओके, आई विल से दैट दिस इज़ द हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर ऊपर से फेंका एंड इट रिबाउंड्स, यहाँ से ये बॉल रिबाउंड हुआ एंड इट विल मूव इन दिस वे एंड इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट, ओके। इफ द बॉल इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, फ्लोर के साथ उसका कॉन्टैक्ट कितना था, 0.01 सेकेंड के लिए था, व्हाट वाज इज एवरेज एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये पता लगाना है, ओके। नाउ वी विल सी फॉर मोशन ए टू बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए से जब बी पे आ रहा है, लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोशन ए बी, फॉर मोशन ए बी इनिशियल वेलोसिटी 0, सो u 0 ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो फाइनल वेलोसिटी हम पता करना है हमें, हाइट 4 मीटर, हाइट इज व्हाट 4 मीटर, ठीक है, और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, सो देयरफॉर वी विल यूज द थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। अभी यहाँ पर इफ यू विल सी g एक्सेलरेशन विल बी 10, क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ही हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ u इज 0 प्लस द वैल्यू ऑफ g इज 10, हाइट इज 4, so this is the value of v square, so v square is equals to 2 times 20, 20 into 4 80, so therefore v comes out to be under root of 80 meter per second. सो बॉल हिट करने से पहले, जस्ट पहले बी पे जब वो हिट करेगा उसके जस्ट पहले बॉल का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, दैट वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट्स सी वी, डायरेक्शन कहाँ पर था, डाउनवर्ड था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोशन बी सी, अब बॉल टकराने के बाद, फ्लोर से टकराने के बाद बॉल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, लाइक से अभी ये ऊपर जाएगा विथ अ वेलोसिटी लेट्स से u, कितनी वेलोसिटी से गया आई डोंट नो, ठीक है। फॉर बी सी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, दिस इज द रिटार्डेशन, सो a इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, क्लियर। So the value of a is -10 meter per second square. Height attained by the ball is 3 meter, or you can say the displacement is 3 meter. Fine. So we will use the third kinematical equation, v square is equals to u square plus 2as. The value of v is 0, u का value नहीं पता, acceleration का value -10, displacement का value 3. 3 to the 6, 6 into -10, -60. So therefore I will write down u square is equals to 6, so u is equals to 60 under root of, so ये वैल्यू आ रहा है मुझे इनिशियल वेलोसिटी का, that u is equals to under root of 60 meter per second. Clear? Fine. Now let's talk about the acceleration. What is the formula for the average acceleration? It is the change in velocity upon time. Change in velocity upon time. Okay? Fine. So if you will see, टकराने से पहले स्पीड क्या था, √80, सो आई विल से दैट दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, √60, सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया है, ओके। पहले कहाँ पर था वेलोसिटी का डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट अभी कहाँ पर आ गया, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। सो इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन, what is your final velocity? Final velocity is your u in the upward direction, so I will write down √60 minus what is the initial value, √80, but √80 कहाँ पर था, in the downward direction, नीचे की तरफ हमें पता है वेलोसिटी अगर रहेगा तो हम कौन सी साइन लेते हैं, नेगेटिव, so minus √80. what is the time taken, what is the time of contact, 0.01. क्लियर, मैं फिर से बता देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, टकराने के बाद क्या हो गई इसकी वेलोसिटी u, और u का वैल्यू कितना था, √60, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया √60, ठीक है। आफ्टर दैट माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, टकराने से पहले, मतलब टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी थी उसकी, √80, तो यहाँ पर मैंने √80 डाल दिया बट विथ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि v
जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका डायरेक्शन कहाँ पर था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ अगर डायरेक्शन होगा तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। u √60 को हम पॉजिटिव रखें क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, फाइन। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट बिकम्स √60 प्लस √80 अपॉन 0.01. Okay class, let's solve the next question. Next question is a balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 19.8 meter above the ground when the food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? Okay, suppose if this is your balloon, okay, right now the balloon is moving in the upward direction with a speed of 14 meter per second, okay, and this is the ground. The balloon is at a height of 19.8 meter from the ground according to the question, okay. When the food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? अभी फॉर एग्जाम्पल हमने फूड पैकेट को फेंका नहीं है, फूड पैकेट अभी भी हमारे हाथ में। सो इफ वी आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, बलून ऊपर जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड और मेरे हाथ में ऐसे फूड है, ओके, तो वो फूड का जो पैकेट है वो भी मेरे साथ ऊपर जा रहा है और ये जो फूड का पैकेट है इसका जो स्पीड है वो कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मेरे साथ ऊपर जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो मतलब जब भी मैं इसको रिलीज करूंगा तो मेरे लिए तो वो नीचे जाएगा, आर यू गेटिंग, बट फॉर एन ऑब्जर्वर विच इज लुकिंग फ्रॉम हियर, जो ग्राउंड से देख रहा है, अगर मैंने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना तो वो कुछ देर के लिए ऊपर जाएगा, बाद में नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी ऊपर जाने वाली स्पीड कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड। पहले ये स्पीड 0 होगी, उसके बाद वो नीचे आएगा। आर यू गेटिंग? क्लियर? लेकिन अगर मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना तो वो नीचे जाएगा, बट अगर मैंने इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना तो पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। क्लियर? सो एक्चुअल मोशन जो फूड की है वो कैसे है, लेट्स हियर मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा साइड में। सो इफ यू विल सी द एक्चुअल मोशन ऑफ द फूड इज इन दिस वे। यहाँ पर जो इसका स्पीड है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। मैं इसको नेमिंग कर देते हैं ए से बी एंड बी से सी। सबसे पहले हम मोशन पढ़ेंगे ए बी के बारे में। फॉर मोशन ए बी, फॉर मोशन ए बी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइन। बी पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, 9.8 लेंगे, ओके, फाइन। सो ये हमारा जो वैल्यूज दिया हुआ है, यू कैन टेक एक्सेलरेशन 10 ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। 9.8 इसके लिए ले रहा हूँ बिकॉज 19, sorry, this is not 19.8, this is 19.6, this is 19.6, because 9.8 इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि 19.6 9.8 क्या है, 19.6 का 19.6 क्या है, 9.8 का मल्टीपल है, तो वो इजीली कट हो जाएगा, ओके, फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोशन ए बी फर्स्ट, ओके। सो ए बी मोशन की बात करेंगे यहाँ पर हम। सो देयरफॉर सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। So therefore final velocity 0, initial velocity 14, acceleration नेगेटिव में होगा क्योंकि अभी बॉडी कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो डीएक्सेलरेट होगा, so that's why acceleration minus 9.8 into time t. So therefore I will write down 14 is equals to 9.8 t, so therefore t comes out to be 14 upon 9.8. So when you solve this 14 upon 9.8 you will get 1.43 seconds. So 1.43 seconds, इतना टाइम लग गया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A से B तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड का टाइम लग गया। लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस, S is equals to ut plus half at square. So the value of u 14, time taken 1.43 plus half acceleration minus 9.8, t का स्क्वायर 1.43 का स्क्वायर, okay, so 2 1s are 4.9s are. So when you solve this equation, let's see क्या मिलता है, 14 into 1.43 minus 4.9 into 1.43 square, so it comes out to be 10.
सो एस का जो वैल्यू आ रहा है वो हमें 10 मीटर आ रहा है. सो ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, दिस इज 10 मीटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी टू सी मोशन. बी से सी मोशन की बात करते हैं अभी हम, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोशन बी सी, ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर मोशन बी सी, बी पे वेलोसिटी कितना है, 0. ओके, एट पॉइंट बी इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, फाइन. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इफ यू विल सी, डिस्प्लेसमेंट इज बी से सी तक का 19.6 प्लस 10. सो आई विल राइट डाउन 19.6 प्लस 10, दैट इज 29.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास. ओके, बट हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालेंगे, ठीक है. सो अच्छा, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बी से सी तक आ रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट होगा. सो एक्सेलरेशन लेट्स से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 29.6, यू कितना है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर. सो 1 ज़ा 4.9 ज़ा. So therefore 29.6 upon 4.9 is equals to t square. So therefore t is equals to under root of 29.6 upon 4.9. So let's see ये टाइम कितना आ रहा है हमें. So 29.6 divided by 4.9 and taking the square root, 2.45. So I'll write down this is 2.45 seconds. So B से C तक आने में उसकी कितना टाइम लग गया, 2.45 सेकेंड. So what is the total time? 1.43 plus 2.45, 3.88 seconds. So this is the time. Clear? And next question is that with what velocity does it reach the ground? Okay. So V is equals to U plus AT. U की वैल्यू कितनी है, 0. A का वैल्यू कितना है, 9.8. और B से C तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना है, 2.45. So therefore we'll multiply this value, that is 9.8 into 2.45, so it comes out to be 24. So 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे आएगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है. तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए फ्री फॉल कर. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द ग्राफ. ओके.